नमस्कार दोस्तों। अभी हमारा मूल अधिकार वाला चैप्टर चल रहा है, जो मैंने पढ़ा था। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यहाँ से भी स्टार्ट करना है और मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ उसको। अनुच्छेद 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अनुच्छेद 16, आर्टिकल 16, equality of opportunity in matters of public employment. First, there shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment. Or appointment to any office under the state. Second, no citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence, or any of them be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state. Number third, nothing in this article shall prevent Parliament from making any law prescribing in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the government of or any local or other authority within a state or union territory, any requirement as to residence within that state or union territory prior to such employment or appointment. Number 4, nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any backward class of citizens, which, in the opinion of the state, is not adequately represented in the services under the state. Fourth, A. Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation in matters of promotion with consequential seniority to any class or classes or posts in services under the state in favor of the scheduled castes and scheduled tribes, which in the opinion of the state are not adequately represented in the services under the state. Fourth B. Nothing in this article shall prevent the state from considering any unfilled vacancies of a year which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provision for reservation made under clause 4 or clause 4A as a separate class of vacancies to be fulfilled up in any succeeding year or years, and such class of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of 50% reservation on total number of vacancies of that year. Fifth, nothing in this article shall affect the operation of any law which provides that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion
or belonging to a particular denomination. Article 17. Abolition of untouchability. Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with law. 18. Anuched Article 18. Abolition of titles. Number 1. No title not being a military or academic distinction shall be conferred by the state. Second, no citizen of India shall accept any title from any foreign state. Third, no person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit or trust under the state, accept without the consent of the President any title from any foreign state. Fourth, no person holding any office of profit or trust under the state shall, without the consent of the President, accept any presence, emolument, or office of any kind from or under any foreign state. First, inserted by the Constitution 93rd Amendment Act 2005. 20. First, 2006. Subclause by the Constitution 7th Amendment Act 1956. 29 and schedule for under any state specified in the first schedule, or any local or other authority within its territory any requirement as to residence within that state. Inserted by the Constitution 77th Amendment Act 77th Amendment Act 1995. Fourth, subclauses by the Constitution 85th Amendment Act 2001 for certain birds. 17/6/1995. In fifth, inserted by the Constitution 81st Amendment Act 2000 9/6/2000. अब हिंदी में अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। नंबर 1, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। 16(2) राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा न उससे विभेद किया जाएगा। 16(3) इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है। 16(4) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 16(4) का
इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर पारिणामिक ज्येष्ठता सहित यानी सीनियरिटी सहित पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। 4 कखा इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियों को जो खंड खा 4 या खंड 4 का के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित हैं, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जा रही हैं उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। 16 का 5 इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदाधिकारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। 18 का 1 राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। 18 का 2 भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। 18 का 3 कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। 17 का अनुच्छेद 17 का 4 राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अब ये जो भी संशोधन इनमें हुआ है थोड़ा थोड़ा उसके बारे में। 1 संविधान संशोधन नंबर 1 संविधान 93वां संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 2 द्वारा 20/1/2006 से अंतःस्थापित। 2 संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के या उसके क्षेत्र में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन उस राज्य के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती हो के स्थान पर प्रतिस्थापित। 3 संविधान 17वां संशोधन अधिनियम 1995 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित। 4 संविधान 25वां संशोधन अधिनियम 2001 की धारा 2 द्वारा 17/6/2095 और 17/6/1995 से कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 5 संविधान 81वां संशोधन अधिनियम 2000 की धारा 2 द्वारा 9/6/2000 से अंतःस्थापित। अब मैंने अभी पढ़ा है अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। अब मैं कल पढ़ूंगी अनुच्छेद 19।
वो भी फंडामेंटल राइट्स है। और कल स्टार्ट करती हूँ। जब तक के लिए नमस्कार।